hello children, welcome everyone to my YouTube channel Visual Coding. And yesterday we have started with MySQL. From here we start and we discussed about several basic terms of the database. We discussed about database, DBMS and its advantage. We learn about the front end, back end, and the terminology related to the database like tuple, cardinality. We learn about records. We learn about degree, cardinality, primary key, foreign key, candidate key, and alternate key. So all these things we discussed yesterday, and if you have not seen that, please check my 5th lecture of computer science, that is on the database management. And at the end today, yesterday we learn about the primary key and foreign key. So we have seen that how the foreign key depend upon the primary key. Okay, so till here we learn yesterday, and once again primary key is unique and not null. This you have to remember. Unique मतलब इसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है. सेकंड, इसको हम नल नहीं रख सकते. इट मीन्स इन दिस टेबल नेम आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, आप क्लास ब्लैंक छोड़ सकते हो, बट student ID cannot be a blank. This is what the property of primary key. And in foreign key, all the value whichever you will draw from, that value should be there in primary key. यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी आईडी ऐसी आप नहीं ले सकते जो यहाँ ना हो. दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की. व्हेन वी विल डू प्रैक्टिकल वी विल अंडरस्टैंड इट मोर प्रैक्टिकली. ठीक है, आई होप इट अंडरस्टैंड. सो आज हम स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ MySQL. सो दो वी आर लर्निंग MySQL, तो हमें पता होना चाहिए ये क्या है, कहाँ से आया. सो पहली बात क्या है, MySQL इज अ DBMS सॉफ्टवेयर. इट्स RDBMS सॉफ्टवेयर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ओके, इट्स फ्रीली अवेलेबल. तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ, देखिए. इट्स a relational database management software. करेक्ट, इट्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है. एक बात, पॉइंट लिखने से चीज़ें याद रहती हैं. दूसरा, ये क्या है, फ्री है, फ्रीली अवेलेबल. You go to the at www.mysql.org. You visit this website and you can download it from freely over there. It does not cost anything from you. So this is the second property with the MySQL. Okay, fast है, it is fast है, फास्ट रिस्पॉन्सिव है. सिक्योर, जो सबसे बड़ी बात है, हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटो होता है वो क्या है कि डेटा मस्ट बी सिक्योर. ओके, डेटा मस्ट बी सिक्योर. फास्ट है एंड इट्स पोर्टेबल. फास्ट, सिक्योर एंड पोर्टेबल. ठीक है, जब बात आती है पोर्टेबिलिटी, इसका मतलब है, और सबसे बड़ी बात है, पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. इट सपोज मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. You can connect the MySQL with Java, with C++, with Python, with Visual Basic, and likewise जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, it is compatible with all. तो सभी के साथ कनेक्टेड है. Okay, and it suppose, so it is
डेवलप्ड बाय, देखिए ये किसने बनाया, डेवलप्ड बाय। MySQL को चीफ इन्वेंटर अगर हम कहें तो वो थे मिस्टर सॉरी माइकल वाइडनेस, वाइडनेस कह सकते हैं आप। ही इज द पर्सन हु डेवलप दिस and he gave MySQL, SQL actually stands for, MySQL में my is the name of daughter, ये माइकल वाइडनेस की डॉटर का नाम था, ठीक है। एंड SQL is a generic language which stands for a structured query language. So structured query language वो है कि the language which we use to define a database, हम उसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज करते हैं और ये बन गया MySQL। ओके, सो MySQL इज a largely used database all around, okay. And it has 3 variety of commands जिसके बारे में मैं फ़िलहाल समझाता हूँ, बट आपको ये अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। फिर भी MySQL कमांड्स, ठीक है, MySQL इज टोटली कमांड बेस्ड लैंग्वेज है और इसमें जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स हैं दे आर कैटेगराइज्ड इन मेजरली 3 कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ commands, and beta these things asked by the examiner in viva also, तो इन्हें समझना है आपको। टाइप्स ऑफ कमांड है, देखिए द फर्स्ट टाइप ऑफ कमांड इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये एक कैटेगरी ऑफ कमांड है और ये आपको हेल्प करती है डेटा को डिफाइन करने में। इट हेल्प्स यू टू डिफाइन द डेटा एंड when you will learn these types of command like create table, okay, alter table, I mean जो भी आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करोगे दैट इज द DDL कमांड। इन कमांड्स को ब्रीफली मैं आपको समझाऊंगा जब हम SQL की टेबल्स वगैरह बना लेंगे, उसके बाद आप क्विकली कैटेगराइज्ड कर लेंगे कि DDL कमांड क्या होती है, क्योंकि अभी अगर मैं कुछ भी समझाऊंगा तो आपको समझ में शायद नहीं आएगा, तो अभी मैं केवल यहीं पे छोड़ता हूँ एंड व्हेन वी विल कम लेटर ऑन देन आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली। सेकंड है डेटा मैनिपुलेशन कमांड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, जिनको हम कहते हैं DML कमांड। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, जिसमें देखिए अपडेट कमांड हो जाती है, मेनली क्या है the update command, insertion of a record, deletion of a record, ये डेटा को मैनिपुलेट। थर्ड हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और हम कहें TCL। ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज पहले ये सिलेबस में थी, अब तो नाउ बिकॉज ऑफ पैंडमिक गवर्नमेंट ने CBSE ने सिलेबस कर्टेल कर दिया है,
फिलहाल यहाँ पे मीनिंग है कि कोई भी आप डेटाबेस से ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड रिट्रीव करते हैं, चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं, वो डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर होता है। सो इस तरह की कमांड जो डेटाबेस पे परमानेंट चेंजेस करे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और एक और होती है फोर्थ कैटेगरी, जिन्हें हम कहते हैं सेशन कंट्रोल कमांड। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सेशन कंट्रोल कमांड में। whenever you log into any नेट बैंकिंग साइट और एनी ट्रांजेक्शन साइट, तो उसमें क्या होता है, आपका सेशन कुछ 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, वट एवर द स्टिपुलेटेड टाइम, सेशन एक्सपायर हो जाता है, फिर से आपको री लॉग इन करना होता है। सो दिस टाइप ऑफ कमांड विच होल्ड द सेशन, इफ देर इज नो एक्शन इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, देन सेशन एक्सपायर्स। इनको हम सेशन कंट्रोल कमांड कहते हैं। सो ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं जो कि आपकी माई एसक्यूएल की कमांड्स हैं, राइट। तो इन सारे कमांड पे आपको मेजरली 2 चीज़ें इसमें सीखनी है आपके सिलेबस में, DDL एंड DML। तो हम बहुत जल्द प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इसमें, मे बी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आई मीन नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। हाँ, तो कुछ चीज़ें जो थ्योरेटिकली समझने वाली हैं वो आप इसको आज के वीडियो में मैं कवर अप करता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं और हमको ये समझना है कि डेटाबेस में कौन कौन से डेटा टाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा मेजर टारगेट है आज का, डेटा टाइप, क्योंकि इसको समझने से आपको क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द टेबल। ओके, फर्स्ट आता है, देखो INT, मैं क्लियर बताऊंगा। INT डेटा टाइप कैपिटल लिख रहा हूँ, बट पाइथन सॉरी माई एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते हैं। इंटीजर कहाँ यूज होता है? द डेटा टाइप इंटीजर इज यूज वेयर देयर इज अ प्योर इंटीजर नंबर। मैं आपकी लैंग्वेज में सिंपल लिखूंगा, नंबर विदाउट डेसिमल। ओके, numbers without decimals and up to 11 digits, ये इसका डिफॉल्ट साइज है मैक्सिमम। सेकेंड, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, अगर हम उनसे बड़ी वैल्यू लेनी होती है तो फिर हम बिग इंट डेटा टाइप है उसके लिए जाते हैं, फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है समझने की। दूसरा आता है, देखो बेटा, डेसिमल। जहाँ भी आपको डेसिमल वैल्यू, जैसे सैलरी है, मार्क्स है, आपको डेसिमल का रिकॉर्ड करना है, सो यू राइट फॉर दी, हम कह सकते हैं ना, फ्रैक्शनल वैल्यू, या आप कह लो डेसिमल वैल्यूज। ओके, तो क्या आएगा, डेसिमल। मैं यहां पर 2 नंबर आएंगे बेटा। x क्या है समझिएगा, x इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। x को यहां पे बता रहा हूं, क्लियर लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग डेसिमल प्लेसेस, इंक्लूडिंग डेसिमल प्लेसेस, मतलब आपके डिजिट में कितनी, मतलब नंबर में कितनी डिजिट है। और y हो गया नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। सपोज इफ आई एम राइटिंग डेसिमल 5,2, इट मीन्स द मैक्सिमम डिजिट, देखो कम तो हो सकता है, मैक्सिमम डिजिट आपकी 5 हो सकती है। सपोज करिए 459.37, तो देखिए टोटल डिजिट कितनी है 5, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2।
So whenever you are defining decimal data type, you should be keep that mind कि how many total digit data is there. अगर सैलरी है तो सैलरी जनरली 6 डिजिट तक 7 डिजिट तक जाती है, तो हम 9,2 अकॉर्डिंगली वी कैन टेक एनी डेटा टाइप। नेक्स्ट आता है बेटा कैर, और कैर का यहाँ पे साइज होता है। wherever you have alphabet, कैरेक्टर्स है ना, और स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। जो आपने पाइथन में स्ट्रिंग पढ़ा है, it can store numbers also, it can store alphabet also. So when you write char 20 या 10, it means it can receive maximum 20 character of name, maximum right 20 characters. तो चिन्नास्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर बहुत लंबा नाम लग देंगे तो आपको डेटा साइज भी बहुत लंबा देना होगा, बहुत बड़ा देना होगा। तो बिफोर साइनिंग द साइज आपको जस्ट रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू स्टोर। इफ इट इज अ एड्रेस, then at least it should be of 100 bytes of character, right? And there is another which used is varchar, ठीक है। इसको मेरे प्यारे बच्चे जो सुन रहे होंगे अभी, कुछ बच्चे वारचार भी बोल देते हैं, and I always scold them, no it's not varchar, it's varchar। तो varchar बोलना है इसको, fine। varchar and char are same as char, but varchar stands for variable character, it's a variable character। अब फर्क क्या है, देखिए दोनों में फर्क देखना आप। You will also define size here। Now what the variable character do, I'll give you the simple examples है, आपको बताता हूँ। Suppose you have assigned a data type varchar 10, ठीक है, 10 आप समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। When you write varchar 10, varchar 20, whatever size you give, accordingly it occupy the memory space। तो 10 बोलने से 10 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हुआ। नाउ डिफरेंस आप समझिएगा, इफ योर नेम इज रामलाल, फाइन, इफ योर नेम इज रामलाल। अब देखिए अगर ये कैर डेटा टाइप होगा, so these 4 memory bytes are unoccupied and it will be of no use। so char is a static data type। लेकिन अगर यही varchar होगा, so what it will do, whatever the remaining bytes are there, it will be released। यानी कि इसको 10 में से 6 ही चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो बाकी का बचा 4 मेमोरी बाइट्स को ये फ्री कर देता है। So that's why it is a variable character। maximum 10 you can give, मैक्सिमम से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, बट अगर कम है, बच रहा है, तो वो उनको बेकार नहीं करेगा। दैट मेमोरी ब्लॉक विल बी रिलीज्ड एंड कैन बी यूज फॉर द नेक्स्ट पर्पज। सो दैट इज वाई ऑलवेज प्रेफरेबल वेरिएबल कैरेक्टर ओवर द कैरेक्टर। बट इसका मतलब ये नहीं कि varchar होने से कैर खराब बेकार हो गया, ज़रूरत क्या है, नहीं। देर आर सम प्लेसेस वेयर varchar और स्टैटिक डेटा टाइप इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन नंबर में मैंडेटरी है कि 10 डिजिट होना चाहिए, राइट।
अगर 10 नहीं है तो वो इनपुट नहीं लेगा. सो दैट्स वाई कैर स्टैटिक डेटा टाइप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. होप इट इज क्लियर. ओके. Now fifth, which majorly I'm explaining the data type जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है और जो यूज़ होगा वो है डेट. तो जहाँ पे भी आपको डेट डेटा टाइप डेट फॉर्मेट यूज़ करना है, यू विल यूज़ डेट फॉर डेट फॉर्मेट. डेट फॉर्मेट अमेरिकन फॉर्मेट ये फॉलो करेगा बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये अमेरिकन फॉर्मेट यूज़ करता है YY MM and DD. In this format you have to provide the date input. ठीक है. तो ये वो डेटा टाइप हैं जिनकी फ़िलहाल मैं 5 बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है एंड विच विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ टेबल. तो हम जल्दी से एक टेबल क्रिएशन का एग्जाम्पल समझते हैं यूजिंग दिस डेटा टाइप और आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन सो दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिकल. ओके. चलिए फाइन बेटा. तो देखते हैं एक टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा क्योंकि बेटा एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम में यू हैव टू राइट द आंसर विदाउट कंप्यूटर. सो दैट्स वाई आई हैव पिक्ड अप द पेन एंड पेपर टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स. अदरवाइज मैं PPT मैं या स्क्रीन में डायरेक्ट भी समझा सकता था, बट आई ऑलवेज फाइंड कि चिल्ड्रन हैज़ टू राइट आंसर. दैट्स वाई you should have a habit to write the answers properly. एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं. टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं. से स्टूडेंट. ओके. टेबल स्टूडेंट and let's take an example. आई होप मेरी राइटिंग सबको समझ में आ रही हो. ID, नेम, ओके. नेम के बाद हम आते हैं परसेंटेज. उस बच्चे का क्या परसेंटेज है. ओके. फिर आते हैं परसेंटेज के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ DOB. राइट. चलिए एज़ यूजुअल मैं एक बच्चे का रफली ID ले रहा हूँ 1001. नेम है एज़ यूजुअल रामलाल. परसेंटेज आ गई 95.5%. ओके. 50. डेट ऑफ बर्थ हो गई से 2005 18 12. सॉरी MM है तो 10 आएगा. एक और इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं. से 1002 हर्ष and say 85.97. Date of birth 2004 09 and 20. चलिए अभी हम इतने को समझते हैं. ठीक है. बाकी सो इन दिस टेबल आई हैव 4 कॉलम्स एंड 2 रोज. इसको काउंट नहीं करना है बेटा. रोज आर दीज आर 2 रिकॉर्ड्स. रो में जब आप काउंट करेंगे टेबल की तो इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा. दीज आर द टेबल हेडर्स और एट्रीब्यूट्स. This is not information. Okay. So when we have to create this table, how do we judge कि what data type will be required? तो समझिए, I am going to SQL command to create table student. ठीक है. हम इस टेबल स्टूडेंट को क्रिएट करने जा रहे हैं. तो कमांड आएगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट.
ओके, सिंपल। आ गया। देखिए फर्स्ट कॉलम का नाम है आईडी। व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज देयर इन आईडी, आप समझो। इट इज ऑल वैल्यूज आर इंटीजर, है ना, प्योरली नंबर है। सो विल राइट आईडी एंड आईएनटी, आईडी आईएनटी। साइज देखिए जनरली आईडी 4 डिजिट का होता है। आपके स्कूल में डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन स्कूल टू स्कूल, बट मेरे केस में 4 है तो मैं 4 ही लेता हूँ। नेम, अब देखिए नेम, फॉर नेम वी रिक्वायर अ डेटा टाइप char or varchar, both we can take. So here I am taking char, you can take varchar also. और मैक्सिमम साइज से 30 आई हैव टेकन 30, भैया 30 कैरेक्टर का नाम हो सकता है। कॉमा, व्हेन यू विल राइट क्वेरी, एक ही लाइन में लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। उससे आपका इजी क्या होता है कि आपको क्वेरी को रीमेक करना इजी हो जाता है। जब एसक्यूएल हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। तो देखिए परसेंटेज का डेटा टाइप आप देखिए डेसिमल है, डेसिमल। ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, ओके, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, डेसिमल यहाँ आएगा। देखिए परसेंटेज मैक्सिमम 3 डिजिट बिफोर डेसिमल और 2 आफ्टर, यानी कि 5,2 मेरा इनफ है। एंड लास्ट इज DOB एंड डेटा टाइप डेट। डेट का कोई साइज कोई टाइप नहीं देना होता है। दिस इज द कमांड वी हैव क्रिएटेड द टेबल। ओके, तो आप इस कमांड को टाइप कर सकते हैं, और ये नहीं है, बाय मिस्टेक एक ब्रैकेट लग गया था। अब देखिए एक कमांड, हम यही कमांड को हम MySQL में भी प्रैक्टिस करेंगे। अब इंसर्ट करते हैं इस डेटा को। To insert SQL command to insert the table, the row, SQL command to insert a row or record। तो चलिए हम कैसे इसको इंसर्ट करते हैं, कमांड को आपको समझना है। वी हैव अ कमांड insert into टेबल का नाम, टेबल नेम स्टूडेंट, ओके, देन वैल्यूज, ये सिंटेक्स है, वैल्यूज। देखिए when you are inserting value, now the sequence should be the same. So the first is id 1001, it's a integer value। आप इसमें सिंगल कोट डबल कोट ऑप्शनल है, ना लगाए, बट वेयर एवर द कैरेक्टर डेटा टाइप आपको सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। स्ट्रिंग वैल्यू है ना, रामलाल, गॉट इट। परसेंटेज अगेन डेसिमल वैल्यू है, ऑप्शनल है, आप चाहे सिंगल कोट लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी। एंड डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपको इट विल बी रिक्वायर 2005, 10, 12, दैट्स ऑल। सो व्हेन यू विल प्रेस एंटर, आपकी टेबल में ये रो एंटर हो जाएगी। So this is my purpose till here, to teach you some theoretical concept. So on my next video, I will be join the class with MySQL. So by the time, I suggest you also install the MySQL, और मेरे साथ साथ इन कमांड्स को प्रैक्टिस करते जाइए। These commands are very very easy. These are very near to the our natural language. जब आप इनको करेंगे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, MySQL डेटाबेस पढ़ना इतना ही इजी है जितना कि ABCD सीखना है, और बहुत
ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन में ये पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड इट्स वेरी स्कोरिंग यूनिट, 20 मार्क्स की आपकी ये यूनिट आनी है। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है। So I hope whatever I have explained is clear to yourself. In case of any doubt, send me the comment. I'll definitely reply, and we'll meet you on my next video with MySQL. Till then, thank you very much. Bye bye.